Standard 5th. Subject English 1. Semester 2. Page number 16. Chapter 2. How far is the river? Now students, see, this is crossword. Help the boy to reach the river. See, how the boy would reach the river. You have to help the boy. See, you can go this way. And then this way, and then see, reach the river. This was the easy way. Second lane, okay? Let's start the chapter. Page number 17. A young boy sets his heart on going to the river on the other side of the mountain. Does he get there? एक young boy है, means maybe he is of 18 to 25 years old के in between. तो वो young boy को river के पास जाना था, जो mountain के दूसरे side पे है. क्या वो boy river के पास पहुंच पाया? Section 1. Between the boy and the river stood a mountain. See, boy और river के बीच में एक बहुत बड़ा mountain था. The boy was young, the river was small, and the mountain was big. See, boy was young means 18 या 25 के बीच का एज होगा, और the river was small. River बहुत ही small था, but problem क्या था, उसके बीच में एक big mountain था. The thickly forested mountain hid the river, but the boy knew it was there. Generally तो क्या हुआ कि जो river है उसको mountain ने completely hide कर दिया था, but boy को पता था कि वहाँ पर एक river है. Maybe waterfall का voice आता होगा, या fishing के लिए लोग जाते होंगे, या water मिलता होगा वहाँ पर. So यार कोई rumor होगा. Let's see. Where it was and what it looked like. He had never seen the river with his own eyes, but from the villagers he had heard of it, of the fish in its waters, and of its rocks and currents and waterfalls, and it only remained for him to touch the water and know it personally. See, ये सारी चीजें उसे विलेजर्स से पता चली. जो विलेज में बॉय रहता था, उसके नेबर्स हो गए, तो वहां से उसको पता चला कि वहाँ का फिश, वहाँ का वाटर, वो सब उसने खुद की आई से नहीं देखा था, बट ये सब उसने सुना था. He stood in front of his house on the hill opposite the mountain and gazed across the valley, dreaming of the river. See, this is the house. Now this boy is standing here. He was about 25 years old. See, the boy was of 25 years old. A sturdy boy with untidy black hair and shiny black eyes. Rough उसके hair बहुत ही untidy थे. He had fine features and clear brown skin. See, fine features means उसकी looks बहुत अच्छे थे, but a clear brown skin था. But his hand and feet were rough and scratched. उसके हैंड्स एंड फीट्स बहुत ही रफ थे, और स्क्रैचेस मीन्स झुर्रियाँ आती है वैसे थे, फट जाता है हाथ जैसे वैसे थे. ओके. ही वॉज barefooted. Barefooted मीन्स उसने शूज नहीं पहना था, उसने फुटवेयर नहीं पहना था. नॉट बिकॉज ही couldn't afford full shoes, but because he felt free in his bare feet. उसे नंगे पाँव चलना बहुत पसंद था स्टूडेंट, उसको शूज पहनना नहीं पसंद था. He liked the feel of warm stone and cool grass. See, उसको stone की जो warmness और grass का जो coolness आता है वो उसको पसंद था. And not wearing shoes saved him the trouble of taking them off. एक और चीज था कि उसको हम कहीं जाते तो हमें अपना शूज जो है बाहर रखना पड़ता,
तो उसको वो प्रॉब्लम से भी उसको फ्री रहना था, इसीलिए उसे शूज पहनना नहीं पसंद। It was 11 o'clock and he knew his parents wouldn't be home till evening. See, one day क्या हुआ, 11 o'clock को उसको पता था उसके पेरेंट्स जो है वो घर पे नहीं आने वाले हैं इवनिंग तक। There was a loaf of bread he would take with him and on the way he might find some fruit. See, उसने सोचा कि इवनिंग तक तो पेरेंट्स आएंगे नहीं तो आज मैं रिवर देख लेता हूँ। सो उसको ये अपॉर्चुनिटी बार बार नहीं मिलती है स्टूडेंट, कभी कभी मिली तो उसने वो अपॉर्चुनिटी ग्रैब कर ली। और उसने क्या सोचा कि लॉफ ऑफ ब्रेड मीन्स एक ब्रेड का टुकड़ा था वहाँ पर, उसने वो न्यूज़पेपर में रैप कर लिया और उसने सोचा रास्ते में फ्रूट्स भी मिल जाएगा। Here was the opportunity he had waited for. It would not come again for a long time. See, as I said, उसको जो अपॉर्चुनिटी मिली है वो बात फिर से नहीं मिलेगी उसे, because it was not very often his mother and father visited relatives for entire day. ये बार बार नहीं होता है कि उसके पेरेंट्स जो है रिलेटिव के घर पूरे दिन के लिए गए हैं। Left him on his own. They had gone out on something important. That was why he had been left with very sketchy meal. What is sketchy meal, student? Not proper meal means अच्छे से कुछ खाना उसके लिए रख के नहीं गए, शायद बहुत इंपॉर्टेंट काम के लिए अर्जेंट में गए थे, इसलिए वो प्रिपरेशन नहीं कर पाए। A loaf of bread, some milk and 2 eggs. He went into the page number 18. He went into the house and wrapped the loaf in a newspaper. Then he closed all the doors and windows. उसने रैप कर लिया मीन्स एक पेपर में बांध दिया उसको लॉफ ऑफ ब्रेड को, और विंडोज डोर सब क्लोज करके वो रिवर के रास्ते पे चल गया। The path to the river dropped steeply into the valley, then rose and went around the big mountain. It was frequently used by the villagers, the woodcutters, milkman, mule driver, but there was no villages beyond the mountain or near the river. See, वो जो रास्ता था जहाँ पे रिवर की तरफ जाने का, वो रास्ता सभी यूज करते थे, जो माउंटेनर थे, जो विलेजर थे, कोई ड्राइवर था, कोई मिल्कमैन था, बट माउंटेन के उस पर कोई विलेज नहीं था स्टूडेंट। द बॉय पास्ड वुडकटर एंड आस्क्ड हिम हाउ फार इट वाज टू रिवर। सी, वो बॉय जो है ना, एक उसको ये वुडकटर मिला यहाँ पर, जो यहाँ पे एक और बॉय, उसने उसको क्वेश्चन किया कि क्या तुम मुझे बता सकते हो कि रिवर यहाँ से कितना दूर है। द वुडकटर वॉज अ शॉर्ट बट पावरफुल मैन with a creased and weathered face. What is creased and weathered face, student? Face that shows that the person has had a hard life, means बहुत ही मेहनत करके वो एक हार्ड वर्किंग लाइफ वो जी रहा है, उसको इजीली फूड अवेलेबल नहीं होता है या बहुत ही डिफिकल्ट होता है उसे मनी अर्न करने के लिए, वैसी लाइफ वो जी रहा है, वैसा उसको देख के ऐसे लगा। एंड मसल्स दैट स्टूड आउट इन द हार्ट, अगली लम्स। See, section 2. 7 miles, he said, which was fairly accurate. Why do you want to know? See, उस वुडकटर ने बॉय को बताया कि 7 माइल्स दूर है, अंदाजे से बताया कि fairly accurate 7 miles है, पर तुम्हें क्यों जानना है? I am going to the river, said the boy. See, बॉय ने क्या कहा कि मैं वो रिवर के पास जा रहा हूँ। Alone? वुडकटर ने उससे क्वेश्चन किया, अलोन, तुम अकेले जा रहे हो? बॉय ने क्या कहा, ऑफ कोर्स, बट इट इज टू फार, इट विल टेक यू 3 hours टू रीच देयर एंड देन यू हैव टू कम बैक, इट विल बी गेटिंग डार्क, बिसाइड्स इट इज नॉट एन इजी रोड। वुडकटर ने क्या कहा कि 3 hours लग जाएंगे और तुम्हें फिर रिटर्न भी आना है, तो जब तुम रिटर्न आओगे तब तक डार्क हो जाएगा, अंधेरा हो जाएगा, इवनिंग हो जाएगा, नाइट हो जाएगा, सो वो रोड भी इजी नहीं है कि तुम अकेले आ सको। बट आई एम अ गुड वॉकर, सेड द बॉय, दो ही हैड नेवर वॉक्ड फर्दर देन द माइल फ्रॉम हिज हाउस टू हिज स्कूल। सी, तो बॉय ने क्या कहा कि नहीं, मैं अच्छे से फास्ट चल सकता हूँ, मैं तो जल्दी जल्दी आ जाऊंगा, बट बॉय ने कभी भी स्कूल तक भी वो चल के बहुत दूर तक गया नहीं है।
He carried on down the path and the woodcutter looked after him with some misgivings. What is misgivings, student? Doubts. Means of course woodcutter को पता चल गया कि because woodcutter तो एक हार्ड वर्किंग पर्सन था, तो उसको पता चल गया कि ये ज्यादा हार्ड वर्किंग पर्सन नहीं है, इसको इजी वर्क चाहिए, and decided to keep an eye out for the boy on his way back from the market. The path was steep and the boy had to run most of the time. It was dizzy, windy path and he slipped once or twice. See, वो रास्ता सही नहीं था, वो गीला रास्ता था, रोलिंग मतलब भागते भागते जाएंगे, स्लाइडिंग वाला रास्ता था मीन्स. सो बॉय उससे ठीक से चल नहीं पाया था और एक या दो बार वो गिर भी गया. एंड स्लाइड इनटू द बुश और ऑफ द पाथ. जब फिसला तो वो बुशेस मतलब झाड़ियों के बीच में गिर गया या दूसरे किनारे पे गिर गया रास्ते पे. द हिल वॉज कवर्ड विथ लश ग्रीन ferns. The trees were wound in creepers, and the great white dahlia would suddenly rear its golden head from the leaves of fern. Rear means student raise. means जो flowers है ना, वो जो plants है, creepers, climber means लंबे झाड़ होते हैं जो ऊपर ऊपर चल, जैसे मनी प्लांट है, मनी प्लांट को आप ग्रो करोगे तो वो उसके ब्रांचेस ग्रो होते ही जाएंगे, आप एक डोरी थ्रेड बांध दोगे तो वहां तक ग्रो होता जाएगा. इन दिस वे वो प्लांट्स थे वहां पे और वो शाइन कर रहे थे गोल्डन. Soon the boy was in the valley and the path straightened out and rose. He met a girl who was coming from the opposite direction. She held a long curved knife with which she had been cutting grass, and there were rings in her nose and ears. See, बॉय ने रास्ते में किसको देखा? एक गर्ल मिली उसको, वो भी उसी रास्ते से आ रही थी और उसके हाथ में क्या था? नाइफ था. नाइफ मीन्स चक्कू. सो वो क्या कर रही थी? उस नाइफ से ग्रास कटिंग कर रही थी. Her arms were covered with heavy bangles. The bangles made music which she moved her hands. See, उसने बैंगल्स पहने थे, नोज रिंग पहना था, ईयर रिंग पहना था. How far is it to the river? asked the boy. बॉय ने गर्ल को भी पूछा कि कितना दूर है और रिवर. द गर्ल हैड ऑब्वियसली नेवर बीन टू द रिवर, और शी मे हैव बीन थिंकिंग ऑफ अनदर वन, बिकॉज शी सेड 20 miles विदाउट एनी हेसिटेशन. मीन्स गर्ल को या तो पता ही नहीं था, नॉलेज ही नहीं था उस रिवर के बारे में, या तो वो किसी और रिवर की बात कर रही थी. तो हेसिटेशन मीन्स बिना उसने झिझक के, बिना सोचे समझे उसने बोल दिया 20 miles. The boy laughed and ran down the path. The parrot suddenly flew low over his head, a flash of red and green. It took the course of a path, and the boy followed its dippy flight, running until the path rose and the bird disappeared amongst the trees. See, parrot मिला उसको और फिर वो भागता गया, वो बॉय भाग भाग के जाता गया. फिर सडनली पैरेट भी डिसअपियर हो गया. अ ट्रिकी ऑफ वाटर केम फ्रॉम द हिल साइड एंड द बॉय स्टॉप टू ड्रिंक. सी, एक ट्रिकल ऑफ पानी का कुछ वहां पे दिखा उसको, तो वहां पर वो रुक गया बिकॉज मे बी द बॉय इज थर्स्टी. वाटर वॉज कोल्ड एंड शार्प बट वेरी रिफ्रेशिंग. However, it seems to have the effect of making him thirstier. मीन्स उसने कोल्ड वाटर पिया, उसे और प्यास लगने लग गई, और वाटर पर रिफ्रेशिंग था, अच्छा था वो वाटर. द सन वॉज स्ट्राइकिंग मीन्स शाइनिंग. सन शाइन कर रहा था हिज साइड ऑफ द हिल एंड द डस्टी पाथ बिकेम हॉटर. सी, समर का सीजन होगा शायद. सन डायरेक्टली उसके ऊपर ही गिर रहा था, सन बॉय के ऊपर ही, और वो पाथ क्या हो गया? हॉट हो गया. अब बॉय को बैर फुट चलना पसंद था, मीन्स वो बिना चप्पल के, बिना फुटवेयर के वो चलता था, तो उसे ऑफकोर्स हीट लग रहा होगा अपने फुट पे. The stones scorching the boy's feet, he was sure he had gone halfway. He had walked for over an hour. वो 1 hour से walk कर रहा है boy. Section 3. Presently he saw another boy ahead of him, driving a few sheep down the path. How far is the river? See, अब दूसरी बार से कौन मिला? शेपर्ड मिला, जो शिप को ले जा रहा है एक बॉय.
जो शिप को ले जा रहा है वो उससे मिला। उसको भी पूछा कि कितनी दूर है रिवर। द विलेज बॉय स्माइल्ड इन अ फ्रेंडली वे एंड सेड, "Oh, not far, just around the next hill, straight down." See, उसने क्या कहा कि ज्यादा दूर नहीं है, बस ये नेक्स्ट हिल के पास ही है और थोड़ा सा नीचे जाओगे तो आपको रिवर मिल जाएगा। द बॉय फीलिंग हंग्री unwrapped his loaf of bread and broke it in half, offering one portion to the village boy. See, ये जो विलेज बॉय था, जो शॉर्ट विलेज बॉय था, वुड कटर, उसके साथ था तो उसने उसको भी ऑफर किया। They sat on the hillside and ate it silent. When they had finished, they walked on together and began talking. The boy did not notice the smarty of his feet and the heat of the sun and the distance he had covered. And the distance he had yet to cover. See, बॉय ने नोटिस नहीं किया कि उसका फीट कितना स्मार्टी, मीन्स पेन इन हिज फीट, मीन्स उसके फीट पे पेन हो रहा था। वो इतना एक्साइटेड था रिवर को देखने के लिए कि उसने नोटिस भी नहीं किया कि उसके फीट में पेन हो रहा है, और उसको ये भी नहीं पता था कि कितना डिस्टेंस उसने कवर कर लिया है और कितना डिस्टेंस कवर करना बाकी है। बट आफ्टर सम टाइम हिज कंपेनियन हैड टू डाइवर्ज। व्हाट इज डाइवर्ज स्टूडेंट? मीन्स टेक अनदर वे, मीन्स उसके साथ जो ये बॉय था, जो वुड कटर, वो उसको दूसरे रास्ते चला था, तो वो अपने रास्ते चला गया। एंड द बॉय वॉज वंस मोर ऑफ हिज ओन, मीन्स फिर से वो जो बॉय है वो अकेला हो गया। ही मिस्ड द विलेज बॉय, ही लुक्ड अप एंड डाउन द माउंटेन पाथ बट could see no one. उसने बहुत ढूंढा, उसको कोई मिला ही नहीं वहां पर। वो मिस कर रहा था विलेज बॉय को, उसकी कंपेनियन को। His own home was hidden from view by the side of the mountain and the river was not in sight either. See, जब उसने पीछे पलट कर देखा तो उसका खुद का घर भी उसे नहीं दिख रहा था और ना ही रिवर दिख रहा था उसे। He began to feel discouraged. If someone had been with him, he would not have flattered. What is flattered, student? Means uncontrolled, means उसको झिझक नहीं हो रही, उसको डर नहीं लग रहा था। Would not have hesitated or felt, means उसको ऐसे बुरा नहीं लग रहा होगा, डर नहीं लग रहा होगा या अकेला नहीं लग रहा होगा अगर कोई उसके साथ होता। But alone he was tired and lonely. See, he was sorry he had finished the bed. He might want it later. Yet he had come more than halfway, but he couldn't turn back. He had to see the river. If he failed, he would always be ashamed of experience. फिर उसे हंग्री भी फील हो रहा था। उसने सोचा कि मैंने अभी ब्रेड क्यों खा लिया, मैं थोड़ी देर के बाद ब्रेड खाता। अब तो मैं बहुत दूर आ गया हूँ, हाफ में, अब मैं वापस भी नहीं जा सकता, वरना उसको आगे चल के अशेम्ड में शर्मिंदगी फील होगी, शर्म आएगी कि मैं इतने आगे तक आया और मैं हाफ रास्ते से चला गया। So he walked on along the hot, dusty, stony path, past mud huts and terraced field, until there were no more fields or huts, only forest and sun and loneliness. Now there was no man and no sign of man's influence. देखो, अभी वो ऐसी जगह पे आ गए जहाँ पे घर भी नहीं है, फील्ड भी नहीं है, ना कोई मैन है, ना ह्यूमन बीइंग भी कोई नहीं है वहां पर। ओनली फॉरेस्ट एंड सन एंड लोनलीनेस, वहां पर सिर्फ फॉरेस्ट था और सन और लोनलीनेस मीन्स वो अकेला ही वहां पर था। नाउ देयर वाज नो मैन एंड नो साइन ऑफ मैन्स इन्फ्लुएंस, ओनली ट्रीज एंड रॉक एंड ब्रैम्बल एंड फ्लावर्स, ओनली साइलेंस। सी, मतलब कांटे वाला झाड़ होता है ना, ब्रैम्बल मीन्स, वो सारे उसको दिख रहे थे और साइलेंट, एकदम कंप्लीट साइलेंट था। तो साइलेंस वाज इम्प्रेसिव, मीन्स वो साइलेंस अच्छा लग रहा था उसे। एंड अ लिटिल फ्राइटनिंग, डर भी लग रहा था। इम्प्रेसिव मीन्स तारीफ कर रहा है वो उसकी, के खुश हो गया वो साइलेंट को देख के, बट उसको डर भी लग रहा था। इट वॉज डिफरेंट फ्रॉम द साइलेंस ऑफ रूम और स्ट्रीट, इट वॉज द साइलेंस ऑफ स्पेस, ऑफ द अननोन। There wasn't any movement either, except from the bending of grass beneath, the boy's feet, or the circling of a hawk high above the pine tree.
Then as the boy rounded a shape and the silence broke into sound. A sudden roaring a sound, the sound of the river. See, finally सब trees, बड़े बड़े trees थे, pine trees थी, इन सबके sound आ रही थी. एकदम silent भी था और उसे डर भी लग रहा था. बट जैसे ही वो दूसरी तरफ घूमा तो ये साइलेंस जो था वो बंद हो गया और उसे किसकी आवाज सुनाई दी? रिवर की आवाज सुनाई दी. Far down in the valley, the river trembled over rock, fast and fringed. See, what is fringe? Fringe student uncontrollable means आपने बीच में देखा होगा. तो जब वो बीच में जब वो वेव्स आता है तो अनकंट्रोलेबल होता है ना. वो वेव अपनी तरफ आ जाता है. वेव हम उसे कंट्रोल थोड़ी कर सकते. The boy gasped and began to run. He slipped and stumbled, but still he ran. See, भाग कर गया वो, बट वहां गिर भी गया वो, बट फिर भी वो अगेन वो उठा और भागने लगा फिर से. Then he was ankle deep in a painfully cold mountain water, and the water was blue, white and wonderful. See, उसके पैर में बहुत ज्यादा दर्द हो रहा था, बट वो रिवर को देख के बहुत खुश हो गया, बिकॉज रिवर कैसा था? ब्लू, व्हाइट एंड वंडरफुल. Hard words. Young, personally, features, scratch, opportunity, freezed, straighten, hesitation, diverge, ramble. Sketchy meal, not a proper meal. Striking, shining one. Diverge, take another way. Bramble, thorny bush. Fenced, uncontrollable. This is meanings.